عام انتخابات میں پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری، فورسز کے دستے حساس حلقوں اور پولنگ اسٹیشنز پر فرائض سر انجام دیں گے۔ اہلکار ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر بھی کام کریں گے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ وزارت داخلہ نے فوج تعینات کرنے کی سمری کابینہ کو بھجوائی تھی۔ الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے 2,77,000 اہلکار طلب کیے تھے۔ کابینہ اجلاس میں ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ خارجہ، آئی ٹی، قانون و انصاف، کامرس اور نجکاری کے وزیر ممبر ہوں گے۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی خدشات، پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، اسلحہ لے کر چلنے اور ہوائی فائرنگ پر پابندی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق 8 فروری کو الیکشن میں سیکیورٹی خطرات کی اطلاعات ہیں۔ دہشت گردی اور امیدواروں میں لڑائی جھگڑے کے امکانات۔ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی دفعہ 144 کے زمرے میں آئے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ 12 فروری تک کیا گیا۔ ادھر ملک بھر کے بلدیاتی اور کینٹونمنٹ بورڈ کے ترقیاتی فنڈز منجمد۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات تک فنڈز منجمد رکھے جائیں گے۔ بلدیاتی ادارے صرف روزمرہ کے امور نپٹائیں گے، صرف صفائی اور سینیٹائزیشن کا کام ہی کر سکیں گے۔ نئی اسکیم کے اجراء یا ٹینڈر دینے پر پابندی، وہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان الیکشن شیڈیول سے پہلے ہوا۔ الیکشن قریب آتے ہی لاہور میں سیاسی گہما گہمی، نون لیگ کی انتخابی مہم تیز۔ نواز شریف فرنٹ سیٹ پر آ گئے۔ سابق وزیر اعظم کا 10 سال بعد اپنے حلقے کا دورہ۔ نواز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں لاہور کے حلقہ این 130 میں ریلی، جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ کارکنوں کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور، ہوا میں غبارے چھوڑے گئے۔ کارکنوں کی پارٹی رہنماؤں کے حق میں نعرے بازی۔ ریلی کا آغاز موہنی روڈ سے کیا گیا۔ لوئر مال، داتا دربار، پیر مکی دربار، مین بازار موہنی روڈ، مالی پورہ سے ہوتے ہوئے آؤٹ فال روڈ پر ختم ہوئی۔ نواز شریف نے کارکنوں سے خطاب نہ کیا، گاڑی میں نمک پارے کھاتے رہے۔ پرانے سیاستدان ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو انتقام لیں گے۔ انتقام لینا میاں صاحب کی عادت ہے۔ میاں صاحب کی نفرت اور بغض کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ذاتی انتقام کے لیے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چنیوٹ میں جلسے سے خطاب، بولے میاں صاحب کا پہلا اور دوسرا دور آمریت سے کم نہ تھا۔ 3 بار وزیر اعظم بننے والا چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نئی سوچ اور سیاست لانا ہوگی۔ مجھے 4 بار نہیں، 1 بار موقع دیں۔ آصف زرداری جب ملک کے صدر بنے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کرنا ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہوگا۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہے تو ملک کے مخالفین فائدہ اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو کو اب نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے شہباز حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا؟ پی ڈی ایم بنا کر ضیاء کے وارثوں سے الحاق کیوں کیا؟ آئی پی پی نے چند سیٹوں کے لیے اپنی پارٹی کی قربانی دے دی۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، بولے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کرنے پر جاوید ہاشمی کا شکریہ۔ جاوید ہاشمی نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بہت بڑی بات کہی ہے۔ سائفر صرف سیکرٹری خارجہ کے لیے تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سیاسی مداخلت کو مانا۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران روسٹم پر آ کر بیان دیا، جج کی گارنٹی کے باوجود میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تصدیق نہ ہونے پر این 150، 151 اور پی پی 218 سے میرے کاغذات مسترد ہوئے۔ میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تو جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کہا ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ 2018 دے وچ جدو نواز شریف دی حکومت ختم تھی گئی اور اس وقت تک جنوبی پنجاب دی نواز شریف نے بیا کنی خدمت کی تھی، وہاں کو سب بیا چنگی طرح معلوم ہے کہ 2008 تو لے کے 2018 تک نواز شریف دی قیادت دے وچ اس جنوبی پنجاب دی وسیب دی۔ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، ہر جگہ سڑکیں بنوائی، دانش سکول قائم کیے، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے بچے جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا احمد پور شرقیہ میں جلسے سے خطاب،
बोले 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म की गई, इक्तदार मिला तो छोटे किसानों को कर्ज देंगे, जैसे वसेब की खिदमत की ऐसे दोबारा खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का जीतने के बाद अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल सियासतदान लेकिन जेल में हैं। हालिया सर्वे में बानी पीटीआई 57% और नवाज शरीफ 52% पर हैं। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से मुतालिक मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में दीगर की निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मुआशरत संभाली। नई मुंतखब हुकूमत के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इक्तदार मिला तो हर शख्स को छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी हर मुलाजिम की तनख्वाह दुगना करेगी। हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सेहत की मुफ्त सहूलियात चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वोट दें। किसानों और मजदूरों के लिए सहूलत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। जब हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी लाहौर में एंट्री। 2 रोज़ा क़याम के दौरान लाहौर की पार्टी क़यादत और मरकजी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लेंगे। MKM इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो अपना घर छोड़कर एक सीट के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज में एंकर फरीहा इदरीस से गुफ्तगू। फैसल वावडा का प्रोग्राम में कहना था PTI का वोटर किसी की तरफ नहीं जाएगा, पार्टी खत्म नहीं हो रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद अराकीन की मंडी लगने वाली है। नई हुकूमत 6 माह से 24 या 25 महीने चल जाएगी। जो स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ की हुई वो सबकी होनी चाहिए। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान कलमबंद। असद मजीद ने कहा कि 7 मार्च 2022 को अमेरिकी महकमा खारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया गया। मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन का साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारिजा को भिजवाया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। मैंने डीमार्च इशू करने की तजवीज़ दी थी। साइफर मामला पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए धचका था। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। जज शाह महमूद कुरैशी को पुरअमन रहने की तलकीन करते रहे। उधर बानी PTI की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानतें बहाल। लाहौर हाईकोर्ट का ATC को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के जरिए दरख्वास्त जमानतों का फैसला करने का हुक्म। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता। देखना है कि जेल ट्रायल के तरीकाकार को फॉलो किया गया या नहीं। ये नैब केस है, हमने देखना है कि क्या नैब कानून में कुछ अलग है। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना की समाअत करने वाले जज भी 24 जनवरी से छुट्टियों पर जा रहे हैं। इस्तदा है कि जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। बेंच नंबर 3 के सामने केस रखा जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बता दें कि साइफर केस और इस केस में फ़र्क क्या है। साइफर केस में डिवीजन बेंच का फैसला यहाँ कैसे लागू नहीं होता। जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 550 अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। जराये के मुताबिक 290 ट्विटर अकाउंट्स में सहाफ़ी, सियासतदान, वकला और आम सार्फिन शामिल। फेसबुक के 140 अकाउंट्स और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 117 अकाउंट्स हैं। अदलिया और पाक फौज के मुखालिफ के खिलाफ मवाद डालने वाले 20 यूट्यूबर्स की भी निशानदही। 11 मशहूर टिकटॉकर्स और 2 पाकिस्तानी टॉप मॉडल भी शामिल। इन अकाउंट से जजेस और पाक फौज के खिलाफ 10 लाख से जायद पोस्ट और ट्वीट की गई। FIA इन अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कर रही है।
कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान का बाइस बने, क्यों न उनके खिलाफ आइन शिकने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स, कहा हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया अपील गैर मौसर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और सटे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कासिम सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस। आइंदा समाअत पर कासिम सूरी जाती हैसियत में तलब। अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाज़ुन खराब ना हो। शौकत सिद्दीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल हो सकता है। सवाल ये है कि जज ने जो कहा सच है या सच नहीं। मुलाकातों की नफी की गई है। हम हवा में तय नहीं कर सकते कि कौन सच कह रहा है कौन सच नहीं कह रहा। एक जज को हटाना इतना ही आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं है। अदालत कोई भी इंक्वायरी कमीशन कैसे कायम कर सकती है? क्या जजिस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में दे दें? अदालत ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। कैसे कह दें कि पुलिस और इंतजामिया किसी ग्रेट गेम के मोहरे बन जाएं। उन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। आपके MP ऑर्डर दुरुस्त थे तो फैसला आ जाएगा। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर DC और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। SSP जमील जफर के वकील की केस दूसरी अदालत भेजने की इस्तदाद। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड फराहम ना करने पर अदालत का DC रावलपिंडी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी, कोई निजी दस्तावेज नहीं, सब रिकॉर्ड सरकारी है। समाअत आज फिर होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार।